So class, today we will talk about ROI and residual income side by side. What's the difference between the two and how we can use the concept of residual income instead of ROI. हमने कहा कि ROI इतना अच्छा मेजर नहीं है क्योंकि उसकी वजह से कुछ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज मुझसे जा सकती है, ठीक, जो कि प्रॉफिटेबल भी होंगी। तो फिर हम लोग we resort to residual income concept. Now, residual income encourages managers to make profitable investments that would be rejected by managers using ROI. ROI में देखिए हमने एक percentage find out हो जाता है. That percentage is actually the percentage or the return which I am getting on my investment. So if I've invested in, let's say, this furniture, और इसके ऊपर मैंने पैसे कमाए, so that is my return on investment of this furniture. ठीक है, हो गया, that is my return. अब मैं कहता हूँ I have something extra. Now that something extra needs to be invested back as well. अब उसकी investment के लिए if I take the concept of ROI again, which is my return on investment, तो उसकी वजह से मैं शायद कोई प्रोजेक्ट छोड़ूं कि नहीं यार इस प्रोजेक्ट का रिटर्न इतना अच्छा नहीं है, तो वो ये कहता है कि रेजिडुअल इनकम कॉन्सेप्ट आप इस्तेमाल करें, which means if you have in your minds you have a minimum required rate of return, और जो इन्वेस्टमेंट आप उस प्रोजेक्ट के अंदर करना चाह रहे हैं उसको उसमें से उसका मल्टीप्लाई करके प्लॉट करके आप उसका अमाउंट लें और अपनी नेट इनकम में से उसको माइनस करें, एंड इफ यू स्टिल आर गेटिंग सम रेजिडुअल इनकम, आपको कुछ ना कुछ मिल रहा है, सो दैट इज समथिंग गुड, वो कुछ ना कुछ आपको मिल रहा है। आरओआई में यू डायरेक्ट कंपेयर द रेट 16% आरओआई आपका आ रहा है, प्रोजेक्ट आपको 12% दे रहा है या 13% दे रहा है, यू वुड से रिजेक्ट स्ट्रेट अवे, ठीक है। सो इट्स गिविंग 13% but it's rejected. So then they say that managers would actually reject using ROI, so they should resort to the concept of residual income. अब आते हैं residual income और इस दोनों को compare करते हैं। Now, Redmond Awnings, a division of Wrap-Up Corporation, has a net operating income of 60,000 and average operating assets of 300,000. The required rate of return for the company is 15%. What is the division's ROI? G. ROI. How do you calculate ROI? Farooq, once again, we have a marker. Okay, we have one. So, now, ROI. How do you calculate ROI? Return on investment. Average operating assets. यहाँ पे आ जाएंगे, which is your investment, and net income, which is your net operating income or EBI. Okay, so now what is my net operating income over here? 60,000. 60,000. And what is the investment in my assets? Average operating assets? 300,000. So that means I'm getting an ROI of 20%. Clear? Easy? Okay. 20%. अब आगे चलिए. Now, Redmond Awnings, a division of Wrap-Up Corporation, has a net operating income of 60,000, same figure, and average operating assets of 300,000, same figure. If the manager of the division is evaluated based on ROI, so now you are using ROI. Will she want to make an investment of 100,000? Okay, so now you are investing 100,000. That would generate additional net operating income of 18,000 per year. 100,000? Yes. That would generate 18,000 per year. पिछले का आंसर 20%, ठीक है, दिमाग में रखिए जी। And the manager of the division is evaluated based on ROI. मैं किसी मैनेजर को evaluate करता हूँ कि वो कितना ROI करके दे रहा है, यानी कितना रिटर्न मुझे कमा के दे रहा है based on investment, ठीक है, यानी एवरेज ऑपरेटिंग एसेट में उसने कितनी चीजें हमने इस्तेमाल की हुई हैं, कितनी चीजें हमने इन्वेस्ट किया हुआ है और वो मुझे कितना रिटर्न दे रहा है। वो थोड़ी देर पहले I found out to be 20% for this company. If I have a manager who is based on this evaluation, ROI की बेस पे इवैल्यूएशन उसकी होती है, इन 20% की बेस पे होती है, और उसको एक प्रोजेक्ट मिलता है या एक पॉसिबिलिटी है where the investment would be 100,000 but the return would be 18%, sorry, 18,000. So would you go for it? Will she want to make an investment of 100,000 that would generate additional net operating income of 18,000 per year? No. Why? 20% ROI. Why? कम हो जाए, ROI कम हो जाए, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी कमा रहे हैं 60,000, तो अगर 18,000 आप और भी कमा रहे हैं, that means your
your net operating income would increase to 78, but your average operating asset would increase from 300 to 400. So that means your new ROI would be 19.5. लेकिन इससे पहले तक ROI कितना था? 20. तो ROI कम हो गया तो आप कहेंगे नहीं, this is a bad thing, don't do it. ठीक है? So you will not do it. So that means एक investment opportunity आपसे गई, ठीक है? Which was actually giving you 18%. आपको 18% की return देगा. The company's required rate of return is 15%. अब देखिए, now look at the other side. कंपनी का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 15% है मिनिमम. जो कहता है ना कि मैं एक थ्रेशोल्ड मैंने रखा हुआ है कि इतना कमाना है जरूर, वो 15%. Would the company want the manager of the investment earnings division to make an investment of 100,000 that would generate additional operating income of 18,000 per year? Yes. अब देखिए अगर इसको 15% के साथ में कंपेयर करूं, ठीक, और इस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को देखूं, सो 3% आसान. Yes, sir. 15%. Possible. So now we've seen that actually your investment would reduce, your ROI would reduce. But if you only look at the investment in Increase हो रहा Where? है. ये तो सर कुछ क्या Acha, here investment would reduce, ठीक है, ROI would reduce. But if you look at it from the point of view of your minimum required rate of return, then it's actually ज़्यादा है उससे ना. तो जब उससे ज़्यादा है तो फिर तो ये तो अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी. What is the divisions? अच्छा, Redmond Onyx, a division of Wrap-Up Corporation, has a net operating income of 60,000 and average operating assets of 300,000. The required rate of return for the company is 15%. Yeah. What is the division's residual income? अब residual income find out करेंगे. Residual income. Residual income थी कि कितनी income बच जाती? कितनी income बच जाती? So that means you start with net operating income और फिर इसमें से आप कुछ माइनस करेंगे और वो माइनस वो करेंगे which would be your required rate of return and the investment which you are doing in it, which is Average operating income. 300. 300,000 थी. Yes, sir. Sure? Yes, sir. 300,000. Okay, calculate. 15,000. 15,000. ठीक है? 60,000 minus 45,000. 45,000 की calculation is 15% of 300,000. So your residual income is 15,000. ठीक? तो इसका मतलब ये है कि residual income है. There is a residual income when you are earning, when you are achieving your minimum required rate of return. आप अपना minimum required rate of return achieve कर रहे हैं, but there is still a residual income. आप अपना minimum required rate of return achieve कर रहे हैं, which is 15%, वो आपको मिल रहा है, and there is still a residual income, so that means it's a good one. If the manager of the Redmond Earnings division is evaluated based on residual income, अब अगर मैं ROI की उसके ऊपर बेस नहीं करता हूँ, उसे residual income पे बेस करता हूँ, will she want to make an investment of 100,000 that would generate additional operating income of 15,000 per year? तो क्या वो करेगी? Yes. Yes. ठीक है? तो this is the point. जब आप ROI की बेस पे करेंगे, so there would be profitable investment opportunities जो आप छोड़ देंगे. ठीक है? Although it is profitable, यार आपके minimum required rate of return से तो ज़्यादा ही है. ठीक है? Residual income आपको बच रहा है. तो ठीक है, you should go for it. Yes. This is the calculation which you have already done. Increase of 3% in the residual income. सही? Clear? Yes. Sir, but ये जो क्वेश्चन है इसमें तो 18,000 जो जनरेट हो रहा है हाँ. वो तो एडिशनल नेट ऑपरेटिंग इनकम है ना, वो रेजिडुअल इनकम तो नहीं है. Additional net operating income. 18,000 plus 60,000, 78,000. Additional net operating income है. ये Sir. additional net operating income. सर कि ये जो इंक्रीज Net operating income. वो तो सही है. मैं ये कह रहा हूँ कि वो अगर इन्वेस्टमेंट वैसे नॉर्मली करता है ना हाँ. तो उसकी रेजिडुअल इनकम 15,000 आती है. Residual income उसकी आती है 15,000 नॉर्मली. 15,000 का फिगर कहाँ पे आपने कैलकुलेट किया है? सर वो कैलकुलेशन फिर दिखा दो. Sir, आगे है. स्टार्ट से जाए, यहाँ से जाए, आपको यहाँ से ऐसा हो जाएगा. ओके, हमने स्टार्ट किया कि 60,000, 300,000 पे 60,000 आप नेट ऑपरेटिंग इनकम कमा. ठीक है? और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 15%. फिर हमने पहले ROI फाइंड आउट किया which was 20%. ठीक? 20% ये हो गया. फिर इसके बाद हमने कहा
कि आपके पास एक और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है कि 100,000 इन्वेस्ट करके आप एडिशनल 18,000 1 लाख और इन्वेस्ट करके, हमने ये चेक किया। लेकिन ROI आप इवैल्यूएट आरओआई की बेस पे होते हैं, तो अगर आरओआई की बेस पर देखें तो ये आपको 18% कमा रहा है अगर इसका आरओआई बनेगा, और इससे पिछला आपका आरओआई था 20%। हम कहते हैं नहीं, इट्स नॉट अ गुड आइडिया, ठीक, नो। अच्छा आगे जाएं, इसकी कैलकुलेशन उसने ये कर दी है, आरओआई कम होकर 19.5 पे आ गया, ये हमने कर दिया। ओके, फिर हमने कहा कि अगर ये इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आपके पास है, the required of return is 15% and you have to make an investment of 100,000, it would give you an income of 18,000 per year, so would you go for it? तो हमने कहा कि हाँ, क्योंकि 18% ये आपको कमा के दे देगा जो आपके मिनिमम रिक्वायर्ड ऑफ रिटर्न से ज़्यादा है, जो 15% था, so it is something good। अच्छा, फिर हमने ये कहा कि रेजिडुअल इनकम कंपनी की क्या होगी अगर नेट ऑपरेटिंग इनकम 60,000 और एवरेज ऑपरेटिंग एसेट्स 300,000। हमने इसकी कैलकुलेशन की उस फॉर्मूले से, 300,000 का 15%, उससे जब हमने कैलकुलेशन की तो हमारे पास आ गया 15,000 ऑफ रेजिडुअल। ठीक, ये भी हो गया। ये हमने कैलकुलेशन की जो कि प्रीवियस कैलकुलेशन थी जी। ओके, 15,000 वो कब कमा के देना था, जब मैं ये वाली कैलकुलेशन कर रहा था, इसी कैलकुलेशन की ना 15,000 इस कैलकुलेशन। ये 15,000 तब थी जब इन्वेस्टमेंट वाज 3 lakh 3 lakh and the net operating income was 60,000। तो ये 15,000 तो उस वक्त थी, ठीक है। तो अब अगर नया ऑप्शन आया, आप 15,000 कमा रहे हैं, यू आर गोइंग गुड, लेकिन कोई कहता है देयर इज अ अपॉर्चुनिटी, आप कहते हैं व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी, वो कहता है 1 लाख इन्वेस्ट करें, 18,000 रिटर्न देगा। मैं कहता हूं लेट मी थिंक, आरओआई चेक करो, इसका आरओआई करंट आरओआई इज 20, इसका आरओआई इज 18, so the new ROI is 19.5। मैं कहता हूं नहीं, it's not a good option। Why? Because my ROI would reduce। मैं कहता हूं नहीं करता, I've lost an opportunity। अब आते हैं रेजिडुअल इनकम। रेजिडुअल इनकम मैं चेक करता हूं, टूल्स है ना, दोनों टूल्स हैं, ROI भी टूल है, रेजिडुअल इनकम भी टूल है। इस टूल पे चेक करता हूं तो मेरा रेजिडुअल इनकम आया 15। आप कहते हैं कि सर एक अपॉर्चुनिटी है, मैं कहता हूं क्या, आप कहते हैं ये, मैं कहता हूं अच्छा कैलकुलेशन करता हूं, मैं इसको इसके साथ ऐड करता हूं। So now my residual income goes up to 18, from 15 it goes up to 18। मैं कहता हूँ yes, 3,000 increase हो रही है, करो आप, तो मैं मिस नहीं करता जी। सर अगर 18,000 की जगह 15 होता सर, तो इब्राहिम जरा टेक्निकली सोचिए, अगर आप मुझे ये कह रहे हैं कि सर एक इन्वेस्टमेंट है, लाख रुपए इन्वेस्ट करें या कुछ भी इन्वेस्ट करें, लेकिन योर रेजिडुअल इनकम वुड रिमेन द सेम, so why would I go for it? Why would I say कि yes it's a good opportunity? सर वो 15,000 तो वो कमा के दे रहा है जो हम मांग रहे हैं। देखिए 15,000 तो वो पहले से मैं कमा रहा हूँ ना। अब आप मुझे कहते हैं कि सर एक नई अपॉर्चुनिटी, मैं कहता हूँ कितनी इन्वेस्टमेंट है और कितना कमाएगा, कितना कमाऊंगा उससे, what will be my return, net operating income from that। और आप कहते हैं कि नहीं सर your net operating income would remain the same 15,000 but you will have to invest 100,000। तो why would I go for it? मैं 100,000 आपके साथ क्यों इन्वेस्ट करूं जब मेरी नेट ऑपरेटिंग या रेजिडुअल इनकम मेरी इंक्रीज ही ना हो। तो जब इंक्रीज ना हो तो देयर इज नो यूज। तो ये तो ऐसे ही है कि मेरे पास फालतू पैसे पड़ेंगे और आप मुझे कहें सर ये इन्वेस्ट कर दें, लेकिन मेरा जो टोटल इनकम है रेजिडुअल इनकम इट वुड रिमेन द सेम। मैंने ये कैसी बातें आप कर रहे हैं, मेरे पास फालतू पैसे पड़े इसलिए तो नहीं पड़ेंगे मैं उठा के बस लगा दूं और मुझे कुछ रिटर्न ना दे। अगर मुझे 1 रुपए भी एक्स्ट्रा रिटर्न दे तो आई वुड से यस आई एम अर्निंग एक्स्ट्रा, ठीक है, माय रेजिडुअल इनकम इज इंक्रीजिंग सो आई विल गो फॉर इट। ठीक, मतलब थ्योरेटिकली, वैसे तो 1 रुपए की खातिर आप कोई प्रोजेक्ट नहीं स्टार्ट अगर करेंगे। रियल लाइफ में तो लोग करते हैं, अगर वो आज 10,000 भी कमा के दे रहा होगा सब लोग, हाँ, बिकॉज इवन 10,000 इज समथिंग ना, दिस इज हाउ पीपल थिंक। 10,000 चलो यार मेरे मोबाइल का खर्चा तो निकल आएगा, 10,000 कर लो, वैसे भी पैसे फालतू पड़े, इट्स नॉट अर्निंग यू एनीथिंग। आइडल कैश इज द वर्स्ट थिंग व्हिच यू कैन थिंक ऑफ। क्यों? इन्फ्लेशन, उसकी वैल्यू वैसे ही डाउन जा रही है, वो तो रिड्यूस हो जाएगा। तो आप कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेंगे व्हिच इज गिविंग यू समथिंग, कुछ ना कुछ देगा जी। क्लियर सो फार? क्लियर सो फार क्लास? We are done with this thing. Okay. The residual income approach has one major disadvantage. लेकिन इसका भी एक बहुत बड़ा मसला है। क्या मसला है? It cannot be used to compare performance of divisions of different sizes. अब आए
देखें ये आपको जो अभी यहाँ पे कंपैरिजन किया था 15,000 से मूव टू 18,000 Yes, sir. 3,000 इंक्रीज आया। Yes, sir. अब तो थोड़ी देर के लिए सोचिए, आपने ये नहीं कहा कि सर 3,000 तो इंप्रूव हो रहा है, लेकिन क्या पता ये इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ऐसी होती कि 1 करोड़ इन्वेस्ट कर दे और वो 3,000 कमा के दे। तो आप कहेंगे यार ये क्या, ये तो 0.000% लेके जा रहा हूँ मैं। तो अगर आपकी बात मान के कुछ ना कुछ तो इंक्रीज हो रहा है, चलो कर दो, बट अदरवाइज हम कहेंगे कि नहीं, इट्स नॉट एक्चुअली गुड आइडिया। फिगर्स तो सेम है, ये 15%, तो फिर आप ये देख रहे हैं कि मैं ROI ड्रॉप्स फ्रॉम 20 टू 19, ये ड्रॉप हो रहा है, लेकिन रेजिडुअल इनकम को देखें इंक्रीजेस फ्रॉम 50 टू, ठीक है, दोनों कॉन्सेप्ट में फर्क आ गया ना। ROI ड्रॉप करता है इफ यू गो फॉर दिस इन्वेस्टमेंट, सो यू डोंट गो फॉर इट, लेकिन रेजिडुअल इनकम, इफ यू आर यूजिंग रेजिडुअल इनकम, सो यू आर सेइंग दैट इट इंक्रीजेस माय रेजिडुअल इनकम, सो गो फॉर इट। सो दीस आर एक्चुअली टू डिफरेंट थिंग्स। अब वो कह रहा है कि ये भी इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर साइजेस डिफरेंट होंगे तो फिर इसका एनालिसिस पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? लेट्स हैव अ लुक एट इट। इसको आप देखिए, इस एग्जांपल को देखिए। रिकॉल द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द रिटेल डिवीजन ऑफ सैफायर कॉर्पोरेशन, रिटेल डिवीजन एंड होलसेल डिवीजन। अब अगर डिविजन्स आपके पास आ गए, किसी भी कंपनी के डिफरेंट सेगमेंट्स आ गए, और वहां पर assume the following information for the wholesale division of Sapphire Corporation. You have retail and wholesale. Retail operating assets are 100,000 and required rate of return is 20%. So that means minimum required return should be 20%. 20% of 100,000 is 20%. Okay, 20,000. Sorry. Wholesale, once again, आपका required rate of return तो 20% ही है ना, कि 20% कमाना है। तो 20% अगर कमाना है, लेकिन wholesale में the investment is actually more, ठीक है? So it's 1 million. So 1 million of operating assets and 20% you will earn 200,000. सही? ये बात यहाँ तक क्लियर है? ये बात यहाँ तक क्लियर है क्लास? ओके, अब आगे जाएं। सर ये होलसेल और रिटेल का रिटर्न तो एक नहीं हो सकता है सर। होलसेल और रिटेल का रिटर्न तो सर एक नहीं एक्चुअली होलसेल। नहीं सर उल्टा हुआ। अच्छा, आगे पे अटेंशन। Okay, Ibrahim, pay attention. Okay, so now this is what we said. Residual income shows that wholesale is good because it's earning you 20,000. But if you look at from the point of view of ROI, so actually retail is good because it's earning at a higher return on investment. उसकी return on investment ज़्यादा है, उसका investment कम है और return 30% आ रहा है. Whereas wholesale का investment is 1 million and it's giving you a return of 22% in this particular thing. Clear हो गया? Clear हो गया? Yes. Now this is the new topic which we need to do. We have 30 minutes, so let's take a 2 minutes break और फिर नया topic start करते हैं. ठीक है? Pause करते हैं. Transfer pricing. Okay class, pay attention. Transfer pricing, this is important. And once again, it's super deep question. Alright. Transfer price. So, transfer price. What does the name suggest? Transfer price क्या है? कि अगर ट्रांसफर ना, आप एक चीज गुड और सर्विस ट्रांसफर फ्रॉम वन सेगमेंट टू अनदर, हम सेगमेंट की बात कर रहे हैं ना इन ऑर्गेनाइजेशन कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट सेगमेंट्स हैं. सो ट्रांसफर प्राइस इज द प्राइस चार्ज व्हेन वन सेगमेंट ऑफ द कंपनी प्रोवाइड्स गुड्स और सर्विस टू अनदर सेगमेंट ऑफ द कंपनी. एक सेगमेंट ने दूसरे सेगमेंट को कोई चीज दी या कोई सर्विस दी, तो ट्रांसफर प्राइस क्या होगी? What should be the transfer price? The fundamental objective. Now, keeping in mind this fundamental objective, you need to set up the transfer price. Our fundamental objective क्या है? Is to motivate managers to act in the best interest of the overall company. Remember, these are divisions of the same company. आपका आपस में कोई भी competition नहीं. Managers को मैं check करता हूँ कि किस division का manager ज़्यादा पैसे कमा के दे रहा है मुझे, उसको मैं ज़्यादा reward करता हूँ ना. उसको मैं कहता हूँ ठीक है, आपने ज़्यादा पैसे कमा के दिए, आपके लिए मोटरसाइकिल, आपको गाड़ी, आपका ट्रिप, इंसेंटिव्स. लेकिन आपस में अगर किसी ने कोई चीज़ ट्रांसफर करनी है तो वो कहेगा यार अगर इसकी प्राइस ज़्यादा कर दूँ तो फिर मेरी सेल ज़्यादा हो जाएगी, मुझे प्राइस मिल जाएगा. लेकिन ये भी तो याद रखें, अगर आप इसकी प्राइस ज़्यादा लगा के देंगे दूसरे सेगमेंट को तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी. दोनों सेम ऑर्गेनाइजेशन है तो आपकी कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी. So it's not in the best interest of the overall company. So keep in mind that the managers of both the segments or divisions
where transfer is taking place and जिसमें transfer हो रही है दोनों act in the best interest of the company. ये भी नहीं है कि आप उसे यार जीरो प्राइस पे दे दो मुझे, तो फिर आपकी कॉस्टिंग खराब हो जाएगी, उसकी सेल खराब हो जाएगी. ठीक, ओके, गॉट द आइडिया? स्टार्ट करें? Yes. Okay, let's start. There are three primary approaches. So, three ways you can do that. Negotiate your transfer pricing. आपस में negotiate करें दोनों में. जहाँ से ट्रांसफर हो रहा है, जिस जगह पर ट्रांसफर हो रहा है, दोनों नेगोशिएट करें कितनी प्राइस पे ट्रांसफर करें. ट्रांसफर इजी. और ट्रांसफर्स एट दी कॉस्ट टू द सेलिंग डिवीजन. ट्रांसफर आप कर रहे हैं कॉस्ट के ऊपर ट्रांसफर कर रहे हैं. ठीक. और थर्ड वन, ट्रांसफर्स एट मार्केट प्राइस. उसने वैसे भी मार्केट से ये चीज खरीदनी है ना, तो मार्केट से जितने पे खरीदेगा उतने में मुझसे खरीद. बात मैं आपसे ये कहता हूँ ना, मेरी कंपनी वाले आपने मार्केट से ये चीज खरीदनी है तो आप मार्केट से खरीदते हैं तो मुझसे खरीदिए. सेम प्राइस, मेरी सेल हो जाएगी, आपको आपकी चीज मिल जाएगी. आपने वैसे भी इतने पैसे देने हैं मार्केट में तो इतने पैसे मुझे दे दें. ठीक, डन? Yes, sir. स्टार्ट करें तीनों प्रोसेस. Yes. Okay. Determine the range if any within which your negotiated transfer price should fall. अब negotiated ये तो आसान है ना, मार्केट प्राइस. You look at the market और बस मार्केट में जो प्राइस है उसमें करते हैं. ये भी आसान है. You look at the cost और कॉस्ट होता है आप कर दें ट्रांसफर. ठीक है? Negotiated. This is where you need to decide. अब negotiation दोनों आपस में करेंगे. अब दोनों जब आपस में negotiate करेंगे, so they would set a minimum or a maximum price. A minimum or a maximum price. And then they would see where to negotiate. इसके दरमियान कहाँ पे negotiate करें. This is called the range. ठीक? जो बेच रहा है, जो डिपार्टमेंट सेगमेंट दूसरे सेगमेंट को वो चीज बेच रहा है, वो देखेगा कि मैं किस प्राइस पे इसको दूं. अब वो डिसाइड करेगा ऑन द बेसिस ऑफ समथिंग मिनिमम. यार ये 5 रुपए की मुझे पड़ती है तो 5 रुपए से ज्यादा ही बेचूंगा ना इसको. ठीक है. जो खरीद रहा है वो कहेगा यार ये मार्केट से मिलती है 10 रुपए, तो 10 से ज्यादा तो मैं इसको नहीं दे सकता. 10 से मार्केट में एक चीज मिल रही है आपको 10 रुपए, और एक आपका अपना डिवीजन है वो आपको 11 का देगा, तो आप खरीदेंगे उससे नहीं ना, No, sir. तो वो फिर एक मैक्सिमम डिसाइड कर देता है. ठीक है. सो दैट्स हाउ दे सेट prices, they set range. A negotiated transfer price results from discussions between the selling and buying divisions, and they need to decide a range. Upper limit is determined by the buying division. ठीक है, जो buy कर रहा है वो upper limit maximum decide कर देगा. Lower limit is determined by the selling division. वो अपनी cost से नीचे नहीं जाएगा, Yes, sir. फिर तो वो करेगा ना, लॉस करेगा ना. Yes. तो वो कहेगा यार 5 रुपए की तो मुझे बनाई है मैंने, तो 5 से कम तो नहीं दे सकता. तो वो निगोशिएट जब भी करेगा 5 से ज्यादा. ये कहता है कि मार्केट में 10 की मिल रही है, तो ये कोशिश करेगा कि 10 से कम मिल जाए तो फायदा है, तो ये मैक्सिमम डिसाइड करेगा. क्लियर? Yes. ओके. एडवांटेजेस ऑफ नेगोशिएटेड ट्रांसफर प्राइस. अब इसका फायदा क्या है नेगोशिएशंस का? They preserve the autonomy of the divisions, which is consistent with the spirit of decentralization. दोनों मैनेजर्स खुद डिसीजन कर रहे हैं. ठीक है. So decentralization and they are autonomous, खुद आपस में डिसाइड कर सकते हैं. तो मैं कहता हूँ यार डिसाइड करो, but it should be in the best interest of the company. कंपनी के बेस्ट इंटरेस्ट में होना चाहिए. आप डिसेंट्रलाइज्ड हैं, ठीक, तो ऑटोनॉमी है आपके पास ये हक है कि आप डिसाइड कर सकते हैं, आपके पास इस अपने हक को इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक, आप आजाद हैं इस चीज में करने को, और डिसेंट्रलाइज्ड है, यू कैन मेक डिसीजन ऑन योर ओन. The managers negotiating the transfer price are likely to have much better information about the potential cost and benefits. Now they are the ones who know the cost and benefits. अगर ऊपर से सीईओ कहे कि नहीं इस प्राइस पे कर दो, तो सीईओ को क्या पता कि इसकी कॉस्ट कितनी है, सीईओ को क्या पता कि इसकी मार्केट में प्राइस क्या है, इसके फीचर्स क्या है. So these two managers are in the best position to decide. तो let them decide. इनको डिसाइड करने दें कि किस तरीके से करना है. क्लियर है? स्टार्ट करें. Start करें. Yes, sir. So let's start. We have 20 minutes and we can do this easily in 20 minutes. Sir, Uh, last time क्या था?
जी नेक्स्ट क्लास में नहीं करते सर। वी स्टिल हैव 20 मिनट्स फॉर बहुत टाइम, आराम से हो जाएगा। और दूसरा ये कि एग्जाम में भी आ रहा है, Yes. सो पे अटेंशन। तो सर ये लिमिट सीजीएस और मार्केट प्राइस नहीं होंगे? लिमिट सीजीएस और मार्केट प्राइस इधर अभी चेक करते हैं कि लिमिट क्या वाकई यही है या नहीं। नहीं होंगे। लेट्स सी, इसमें कुछ डिफरेंट सिनेरियोज हैं, ठीक है। जिस तरह सोचें, अगर मैं आपको एक चीज दे रहा हूं, आप मेरा डिवीजन, लेकिन अगर मैं आपको वो चीज ना दूं और मैं बाजार में बेचूं, तो बाजार में जब मैं बेचूंगा तो मैं फायदा कमाऊंगा। लेकिन सर आप एक मिनट, आप सीजीएस मेरे पास टोटल 100 चीजें और आप मुझे कहें 100 की 100 मुझे दे, तो ये बातें यहाँ पे डिसाइड करेंगे कि कितने उसको देंगे, कितने नहीं देंगे। अगर मैं वहां से अगर इसको सारी चीजें दे भी दूं तो फिर वहां से मेरा प्रॉफिट लूज हो जाएगा, तो फिर इससे कहूंगा कि यार थोड़ा प्रॉफिट ही दे दो मुझे, ठीक है। तो दीज आर थिंग्स व्हिच वी नीड टू डिसाइड। जी सर, लेकिन इस तरह भी हो सकता है जैसे अगर इस डिवीजन को अगर मैं जो इससे लॉस हो रहा है और ये डिवीजन किसी और दूसरे डिवीजन को अगर पास करेगा सर, तो वो मुझे नॉर्मल प्रॉफिट कमा के दे सकता है। लेकिन मैनेजर्स आर इवैल्यूएटेड बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ देयर डिवीजन। सर तो वो जो मैंने अगर लॉस कर दिया तो मेरा तो इंसेंटिव्स गए ना सारे, और इज़न के तो मजे हो गए लेकिन ये कि मैंने उसको दे दिया, लॉस को उसको सारा दे दिया, उसने प्रॉफिट कमा लिया और मैं गया मैंने सारा लॉस कर दिया। और फिर एक और बात सोचें, नहीं इब्राहिम, एक और बात सोचें, एक और बात जो बहुत जरूरी है। इज़न जब अपनी कॉस्टिंग करता है, इज़न जब अपनी प्राइसिंग करता है, तो वो किस बेसिस पे करता है? कॉस्टिंग की बेस पे। अब उसको ये वाला मटेरियल फ्री में मिल गया, जीरो कॉस्ट में, तो इसकी प्राइसिंग डिस्टर्ब हो गई, तो इसका मतलब ये है कि कंपनी के लिए तो नुकसान हो गया। Yes, sir. कंपनी ने यहाँ पे इस डिवीजन में लॉस कर दिया और इस डिवीजन में प्रॉफिट तो किया, लेकिन वो एक्चुअली ट्रू प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि एक रॉ मटेरियल जो इसने मुझसे लिया वो इसने फ्री में लिया। सर लेकिन इस तरह भी हो सकता है तो प्रोडक्ट की नेचर पे डिपेंड करता है सर। प्रोडक्ट की नेचर पे, फॉर एग्जांपल जिस तरह का प्रोडक्ट है सर, हाँ, वो अगर आप एक ही पार्ट में तो वो नहीं बिकते, तो वो लॉस। लेकिन यहाँ पे तो हम लोग बेच सकते हैं ना। तो वो एक साथ जब होते दो तीन हाँ अच्छा, ये भी अच्छा आइडिया है आपका, ठीक, इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखें, इस चीज को भी देखें, फिर इसमें हो सकता है वो कुछ तो बिक रहे होंगे ना, वो पार्ट खाली मैं आईसीस, मेरा डिवीजन आईसीस का, मैं आईसीस बनाता हूँ, ये जो है मोबाइल फोन बनाता है, ये भी मेरा डिवीजन, सारे डिवीजन मैं आईसी बनाता हूँ, ये मोबाइल फोन बनाता है, इसके मोबाइल फोन में मेरे ये आईसी लगी है, लेकिन मुझसे वो भी आईसी लेता है, वो कंपनी भी लेती है आईसी, वो भी लेते हैं, सब ले रहे हैं मुझसे, ठीक है, आईसी मुझसे सब लेते हैं। तो अब अगर मैं इनको भी बेच सकता हूँ, इज़न को भी बेच सकता हूँ ये चीज़, फिर इसका मतलब मुझे कुछ डिसाइड करना पड़ेगा ना। इज़न कहेगा सारी मुझे दे दो, कॉस्ट पे दे दो, मैं कहूँगा यार कॉस्ट पे दे दो तो मैं तो क्या, मेरी तो वैल्यूएशन खराब हो गई। बॉस जब पूछेगा कि कितना प्रॉफिट कमा के दिया ऑर्गेनाइजेशन के लिए, मैं कहूँगा जीरो। बॉस कहेगा क्यों, मैं कहूँगा सारी कॉस्ट पे भेज। तो सर ये अगर आप सर इस मार्केट में देख ले सर, एक चीज होती है सर, जैसा अगर आप 8 या 3 की मिसाल ले रहे बड़े बड़े जो शॉपिंग मॉल से सर, एक मतलब अगर डाटा है तो सर सब डाटा की कंपनी से ले रहे हैं, लेकिन सर एक में 10 रुपए पर है, एक में 8 पर है, एक में 7 पर है, एक में 9 पर है, वो प्राइस तो सर सेम नहीं है ना। लेकिन सर वो आप रिटेल, प्रॉफिट, आप इस वक्त रिटेल की बात कर रहे हैं कि रिटेल में जो हो रही है वहाँ पे प्राइसेस मार्केट में डिफरेंट है, यस सर, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं कि इसको बाहर सप्लायर कितने की वो चीज दे रहा है, ये उसके साथ करेगा, उसके साथ कंपेयर करेगा। ये क्वेश्चन करते हैं, आपके ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाए। Assume the information as shown with respect to Imperial Beverages and Pizza Ware, both companies are owned by Harris and Dowd. Now this is the company. कंपनी है Harris and Dowd, ठीक है, ये कंपनी है, और इस कंपनी के दो डिविजन्स हैं। एक डिवीजन है Imperial Beverages, ठीक, ये बेवरेजेस बनाता है, और एक है वो बनाता है पिज्जा वेयर, ये पिज्जा बनाता है, ठीक, दो डिवीजन हैं। आगे चलिए, इंपीरियल बेवरेजेस, जिंजर बेयर प्रोडक्शन कैपेसिटी पर मंथ इज 10,000 बैरल्स, कैपेसिटी इसकी 10,000 बैरल्स बेयर बनाने की, ओके। वेरिएबल कॉस्ट पर बैरल ऑफ जिंजर बेयर इज 8 पर बैरल, वेरिएबल कॉस्ट हो गई। फिक्स्ड कॉस्ट पर मंथ 70,000, ओके। सेलिंग प्राइस ऑफ इंपीरियल बेवरेजेस जिंजर बेयर ऑन द आउटसाइड मार्केट इज 20 पर बैरल। अब अगर ये बाहर बेचे बियर, तो ये कितनी की बियर बेचेगा? 20 की एक बैरल, पूरा बड़ा ड्रम। पिज्जा बेचता, ये पिज्जा बेचता है, लेकिन पिज्जा बेचता है तो ये कस्टमर आएगा तो पिज्जा के साथ बियर भी मांगेगा। परचेज प्राइस ऑफ रेगुलर ब्रांड ऑफ जिंजर बियर इज 18 पर बैरल। ये मार्केट से कितने की खरीदता है?
18 18। अब देखो ये 20 की बेचता है आउटसाइड मार्केट में, ये 18 की खरीदता है मार्केट से। वो डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस आ गया, फर्क नहीं है कि वो देख लेंगे डिफरेंस है। मंथली कंजम्पशन ऑफ जिंजर बेयर इज 2000 बैरल्स, 2000 बैरल्स इसको चाहिए हर महीने। ये हर महीने कितना बनाता है? 10,000 बना सकता है, कैपेसिटी बना सकता है। अब कितने बनाता है ये देखेंगे कितने बनाता है। ये सारा डेटा क्लियर, डेटा क्लियर। लेट्स मूव ऑन। द सेलिंग डिविजन्स Imperial Beverages lowest acceptable transfer price is calculated as follows। अब हमने कहा कि सेलिंग डिवीजन हमेशा क्या डिसाइड करेगा? जो बेच रहा है वो हमेशा क्या डिसाइड करेगा? लोअर लिमिट, लोअर लिमिट। सेलिंग डिवीजन वो सेल कर रहा है, और जो बाइंग डिवीजन है वो वो अपर लिमिट। अपर लिमिट। ठीक है, सेलिंग डिवीजन लोअर लिमिट, बाइंग डिवीजन अपर लिमिट। ये बात हम लोग यहां पे कर चुके। ठीक, ये भी क्लियर हो गई। अच्छा, फिर इसके ये ट्रांसफर प्राइस के फॉर्मूले से जो आपको दिमाग में रखने हैं व्हाइल कैलकुलेटिंग। सो नाउ लेट्स हैव अ लुक। द सेलिंग डिविजन्स lowest acceptable transfer price is calculated as this। So the transfer price should be greater than or equal, या तो बराबर हो या ज्यादा हो इससे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। देखिए वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट तो आपने हर हाल में कमानी है, नहीं तो फिर तो आप लॉस में चले जाएंगे। अगर फिक्स कॉस्ट भी नहीं कमाएंगे तो भी आप लॉस में जाएंगे, लेकिन अगर वेरिएबल कॉस्ट नहीं हो फिर तो कंफर्म लॉस है, कि वेरिएबल भी कवर नहीं करे तो फिक्स कहां से कवर करेंगे। ओके, सो इट शुड बी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अब यहां पे देखें वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है? 8 पे तो इसने जरूर करना है 8, लेकिन प्लस कुछ और भी चार्ज करना है। और कितना चार्ज है? टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन ऑन लॉस्ट सेल्स। अगर मैं इस को सारी चीजें दे दूं तो बाहर जो मैं बेचता हूं मैगी, मैं बाहर 20 रुपए की बेचता हूं। इजन कहता है मुझे 18 की मिलती है, मैं कहूंगा चलो यार मैं 18 की दे देता हूं, लेकिन मुझसे 2 रुपए हर जगह से चलेगा, कट करेगा। सो टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन ऑन लॉस्ट सेल्स, आई हैव लॉस्ट सेल्स, उसका कंट्रीब्यूशन मार्जिन जितने आपने सेल्स लूज की उसका कंट्रीब्यूशन मार्जिन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स ट्रांसफर्ड, और इसको जितना मैंने यूनिट्स ट्रांसफर किए, this would give me my transfer price। So the transfer price should be equal or more। या तो इसके बराबर हो या इससे ज्यादा हो। Let's calculate the lowest and highest acceptable transfer prices under these scenarios। The buying division's highest acceptable transfer price is calculated as this। अब buying पे आ जाए, वो तो हो गया selling का। Buying क्या कह रहा है कि इसका highest acceptable transfer price क्या होगा। So the transfer price should be less than or equal to, ये बस मैक्सिमम, या ये या इससे नीचे। क्या है? कॉस्ट ऑफ बाइंग फ्रॉम आउटसाइड सप्लायर। सिंपल। इजन कहता है बाहर से 18 रुपए की मिलती है, मैक्सिमम 18 रुपए, मैं इससे बात करूंगा या 18 या 18 से कम। सही हो गया? क्लियर? ओके, आगे चलें। इफ एन आउटसाइड सप्लायर डज नॉट एग्जिस्ट, अब एक और सिनेरियो, अगर आउटसाइड सप्लायर ही कोई ना हो इस चीज का, तो फिर सिर्फ मैं सप्लायर, मैं आउटसाइडर को भी दे रहा हूं, मैं अपने डिवीजन को भी दे रहा हूं। The highest acceptable transfer price is calculated as transfer price should be less than or equal to profit to be earned per unit sold, not including the transfer price। Profit to be earned per unit sold, transfer price should be less than or equal to, या तो इससे कम हो या इसके बराबर। जो प्रॉफिट मिल रहा है, हाँ, प्रॉफिट टू बी अर्न पर यूनिट सोल्ड नॉट इंक्लूडिंग द ट्रांसफर प्राइस। ठीक है, कितना पैसे मैं कमा सकता हूँ उसमें ट्रांसफर प्राइस को इंक्लूड नहीं करनी, पर यूनिट कितने पैसे मैं कमा सकता हूँ। कैलकुलेशन अब करें तो आपको और क्लियर हो जाए। कैलकुलेशन स्टार्ट करें? यस। ओके, सो दिस इज द डेटा, ये डेटा है, ये फॉर्मूलास है। ठीक, ओके। सो if Imperial Beverage has sufficient idle capacity, 3000 barrels, to satisfy Pizza Maven's demand of 2000 barrels, मैं बाहर भी बेचता हूँ, मैं इसको भी देना चाहता हूँ। मेरे पास टोटल मेरी कैपेसिटी कितनी है? 10,000, याद है? 10,000। बाहर डिमांड कितनी है? 7,000। 7,000, 3,000 बैरल मेरे पास एक्स्ट्रा है, तो
तो अगर मेरे पास 3000 बैरल एक्स्ट्रा है तो इजन कितने मांग रहा है मुझसे 2000 बैरल। इजन अगर मुझसे 2000 बैरल मांग रहा है तो क्या मैं इजन को 2000 बैरल दे सकता हूँ? ठीक है, दे सकता हूँ इजन को 2000 बैरल, ठीक है दे सकता हूँ। आगे चलो, without sacrificing sales to other customers, then the lowest and highest possible transfer prices are calculated as follows. अगर आपके पास एडिशनल कैपेसिटी हो तो फिर ट्रांसफर प्राइसेस क्या क्या होंगी? लोवेस्ट और हाईएस्ट। जी, ट्रांसफर प्राइस सबसे पहले डिसाइड करें लोवेस्ट हाईएस्ट। पहले क्या डिसाइड करें? 20 lowest sir. लोवेस्ट, ओके। लोवेस्ट का फॉर्मूला सबको याद है? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। Variable cost 8. वेरिएबल कॉस्ट, अच्छा वेरिएबल कॉस्ट 8. 8 तो वेरिएबल कॉस्ट थी, सबको याद है? ओके, 8 इज योर वेरिएबल कॉस्ट, तो 1 हो गई 8। लेकिन प्लस, अब प्लस में देखिए, आर यू लूजिंग एनी सेल्स? 4000 divided by 2000. टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन ऑन लॉस्ट सेल्स, डिवाइड बाय नंबर ऑफ 4000 divided by 2000 सर बट वी आर नॉट लूजिंग एनी सेल्स। निगम ने सबसे टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन ऑन लॉस्ट सेल्स। मेरे पास कितने बैरल कैपेसिटी है? 10000 10,000। इजन की डिमांड कितनी है? 2000। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इंपीरियल बेवरेज हैज सफिशिएंट आइडल कैपेसिटी। 3000 मेरे पास एक्स्ट्रा है, तो अगर इजन 2000 मांग रहा है और मैं इसको 2000 दे दूं, डू आई लूज सेल्स? No sir. Gain. तो प्लस 0, तो मेरी कोई सेल लूज नहीं होगी। यस सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्रांसफर प्राइस, सर अब सर अगर ये है इस क्वेश्चन में हमें अब फारूक आगे जाएगा, आएगा लॉस सेल्स आगे देखते हैं, ठीक है इसका कॉन्सेप्ट। ओके, टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन ऑन लॉस सेल्स नहीं है, नंबर ऑफ यूनिट्स ट्रांसफर्ड, इसकी जरूरत नहीं है। सो दैट मींस ट्रांसफर प्राइस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 8। 8। एक बात तो क्लियर हो गई। यस सर। अच्छा, अब जाते हैं। Upper margin. ओके, ट्रांसफर प्राइस शुड बी लेस देन और इक्वल टू कॉस्ट ऑफ बाय आउटसाइड सप्लाई। आउटसाइड सप्लाई कितने का दे रहा है? 18. 18 का। अगर 18 का दे रहा है, इसका मतलब 8 और 18 इसके दरमियान नेगोशिएशन हो जाए। क्लियर? Yes Yes, sir. sir. क्लियर? लोअर प्राइस इस सिचुएशन सही है? Yes. रेंज इज 8 to 8। ओके, अब देखो, अब आगे एक और सिनेरियो। Yes. इफ इंपीरियल बेवरेजेस हैज नो आइडल कैपेसिटी, फालतू कोई चीज नहीं है, यस सर। and must sacrifice other customers orders, इसको अगर मैं 2000 दूंगा तो 2000 अपने कस्टमर को नहीं दूंगा। नहीं दूंगा, मेरी लॉस सेल्स यहां पर 2000 आएंगी, ठीक है? सो इट विल बी 8 प्लस, अब यहां पर आएगा, 4000. ठीक है? ओके, 2000 barrels to meet preserve units demands, 2000 barrels at the lowest and highest possible transfer prices are। अब मैं 2000 बैरल इसको दे दूं तो 2000 बैरल उसको नहीं दूंगा। जब 2000 बैरल उसको नहीं दूंगा तो 2000 बैरल की वजह से मेरा कितना कंट्रीब्यूशन मार्जिन लूज होगा? टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन ऑन लॉस्ट सेल्स 2000 बैरल दे। पहले तो देखिए मेरा कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना है? व्हाट इज माय कंट्रीब्यूशन मार्जिन? 12. 20 माइनस 8। selling price minus variable cost 8 equals 12, sorry, okay 12, so 12 is my contribution margin lost, okay 12 एक के ऊपर इसे मैं कितने बैलेंस दे रहा हूँ? 2000. तो 24000 होगा सर. 24,000 divided by 2000. number of units transferred, divided by number of units transferred, कितने यूनिट ट्रांसफर कर रहा हूँ उसको? 2000। okay. so this would be 8 plus 24,000 divided by 2000, तो फिर से 12 कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 12, तो 12 प्लस 8 20 20। अब 20 आ गया नीचे, नीचे नहीं हाँ। नीचे. हाँ ना, ये उसने क्या कहा था? Lower ये कौन डिसाइड करता है? ये लोअर है। यस सर। लोअर और हाईएस्ट कितना है? 18। तो क्या इनकी आपस में नेगोशिएशन हो सकती है? नहीं। मैं वो कहेगा यार 20 से कम नहीं दे सकता, वो कहेगा 18 से ज्यादा नहीं ले सकता, इधर कहेगा 18 से ज्यादा कैसे दूं, 18 तो मुझे मिल रहा है बाहर।
मैं कहूँगा यार अगर मैं तुम्हें दे दूँ तो मेरा बार कस्टमर लूज होता है, उससे मेरे पैसे लूज होते हैं, प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन लूज होता है, 20 कर दूँ। तो सर आप पर के लिए हम तो इसका मतलब इस जगह पर नेगोशिएशन पॉसिबल है? नहीं सर, नो नेगोशिएशन। ठीक है, रेंज ही उल्टी हो गई है, रेंज उल्टी हो गई है ना, ठीक है, नेगोशिएशन इज नॉट पॉसिबल, सो देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ नेगोशिएशन। ठीक, ओके, आगे चलिए। इफ इंपीरियल बेवरेज हैज सम आइडल कैपेसिटी, थोड़ी सी आइडल कैपेसिटी 1000, यस सर, इधर से कहता हूँ इधर 1000 दे सकता हूँ, यस ठीक है, बाकी 1000 जो दूंगा तो फिर वो यहाँ पे अपने कस्टमर को नहीं दूंगा, तो अपने कस्टमर को नहीं दूंगा तो वो पैसे मुझसे गए, गए। अब कैलकुलेशन करें, अब आएगा सर 8 प्लस प्लस 1000 1000 लॉस सेल्स मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइड बाय 2000 2000 1000 1000 Yes, sir. 2000 1000 2000 so 2000 ना ऐसे तो फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ यूनिट्स ट्रांसफर ट्रांसफर। तो 1000 देखिए मेरे पास 1000 फालतू है, लेकिन इजन को तो मैं 2000 दूंगा। गौर से सुने, मेरे पास 1000 फालतू, मेरा कस्टमर नहीं मांग रहा मुझसे, 1000 तो वो दे दूंगा आराम से। इजन क्या करेगी 2000 तो बाकी 1000 की कैलकुलेशन का हिसाब मैंने इजन के कॉस्ट में ऐड कर दिया, तो मैं इजन को 2000 दूंगा। ओके, Yes, so 8 plus 12,000 divided by 2000, Yes, so sir. 8 plus 14 यस सर, और ऊपर क्या है 18 18 Possible है? यस सर, आपके पास जो 1000 बैलेंस नहीं कॉम्प्लिकेटेड मेरे पास देखिए थे, मेरे पास है, मेरी कैपेसिटी 20,000, मैं 20,000 बैलेंस बना सकता हूँ, सॉरी 10,000 बना सकता हूँ, 10,000 बना सकता हूँ, लेकिन इस वक्त मेरे कस्टमर कितने डिमांड कर रहे हैं 9,000, 1,000 फालतू है, वो 9,000 डिमांड कर रहे हैं, 1,000 तो मैं इजन से कहता हूँ इजन दे दूंगा, लेकिन इजन कहता है नहीं मुझे 2,000 चाहिए, तो अब मैं अपने कस्टमर को नहीं दूंगा 1,000 कस्टमर से शॉर्ट कर दिए मैंने, उनके जो कस्टमर के लिए वो उठा के इसको दे दिए, तो 1,000 के पैसे मैं इजन से ले रहा हूँ, 1,000 into 12, मैं उससे 12 रुपए कमाता, वो अब मैं इजन से कमा रहा हूँ 12 रुपए इजन से कमा रहा हूँ ये, लेकिन इजन को दिए 2,000, वो उस बाकी 1,000 पे उससे पैसे नहीं कमा रहा है किसी से, ठीक है, तो 2,000 पे उससे पैसे कमा रहा हूँ इतने, और 8 रुपए तो हर हाल में देगा मुझे, क्योंकि 8 रुपए तो मेरी वेरिएबल कॉस्ट है, तो वो तो देगा मुझे वेरिएबल सी चीज। जी क्लियर, सर बस करते हैं। बस करें। ऐसे नहीं हो सकता कि 1000 इनसे ले और 1000 मार्केट से। तो ऐसे इजन तो इजन अब ये देखिए, आप ये सोचिए, गुड क्वेश्चन, इजन आप मार्केट से लेंगे, मार्केट में आपको कितना का मिलेगा 18 का, मेरे साथ आपका क्या आ गया अब यहाँ पे 18 से नेगोशिएशन है ना चांस, मैं 14 से नीचे नहीं जाऊंगा, आप ये तो यानी जहां पे भी बात करते 15 पे 16 पे 17 पे जिधर भी आपने बात कर ठीक है सर। जहां भी नेगोशिएशन किया आपका फायदा है, समझ गए। ठीक है, ओके क्लियर, okay pause, that's it, so that means you are almost done with the chapter.